لما تقول إن الله سيهزم أعداءه الخلاص قريب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو اس لیے مبعوث کیا کہ وہ انسانیت کو گمراہی اور کفر و شرک سے بچا کر اللہ کے منتخب کردہ راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جن سے خود مالک کائنات نے کلام کیا اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ تمام پیغمبر انسانیت کی طرف ایک ہی دین کو لے کر آئے جسے اسلام کہتے ہیں، لیکن شیطان مردود نے اس مقدس دین کو بگاڑنے کے لیے بدعات اور خرافات کو اس میں داخل کرنے کی بھرپور کوششیں کی اور طرح طرح کے فتنوں نے جنم لیا۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ جھوٹے نبی، جھوٹے مسیحا اور دجال کا فتنہ ہے۔ دجال کا تصور کوئی نیا تصور نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے دجال کے فتنے سے اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا ہے، اور دنیا کے کئی مذاہب، آسمانی کتابوں اور تہذیبوں میں جھوٹے مسیحا یا دجال کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلاً ہندو مت میں کلی، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ، یہودیت میں شدیم، اسلام میں مسیح الدجال اور مختلف مذاہب میں مختلف ناموں کے ساتھ اس کذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ میں فالس پروفٹ بھی ہر زمانے میں سامنے آتے رہے اور یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن پر وحی آتی ہے۔ انہوں نے اپنے شعبدے بازیوں سے لوگوں کو دھوکے میں بھی ڈالا اور کئی لوگ ان کے دجل میں پھنس کر ان کے پیروکار بھی بن بیٹھے۔ ریکارڈڈ ہسٹری میں جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والا سب سے پہلا شخص زرتشتی مذہب سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام بہرام چوبین تھا۔ سال 570 عیسوی میں ایران میں ساسانی بادشاہ خسرو دوم نے اسے خراسان کا گورنر بنایا تھا۔ بہرام نے خسرو کے خلاف بغاوت کر کے خود کو زرتشتیوں کا مسیحا ہونے کا اعلان کر دیا۔ بہرام اور اس کے پیروکاروں کا ماننا تھا کہ بہرام زرتشتیوں کا آخری مسیحا یا نبی ہے اور اس کے زمانے میں زرتشتی مذہب کا زوال ہو جائے گا، کیونکہ فارسیوں کا عظیم آتش کدہ کی آگ جسے وہ التار کہتے تھے وہ بجھ چکا ہے۔ 590 عیسوی میں خسرو دوم نے بہرام کو شکست دیا تو وہ فرغانہ بھاگ گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ کتاب الفہرست میں ابن ندیم نے لکھا ہے کہ بہرام کے پیروکار 500 سالوں تک سرگرم رہے، اور جب ایران پر خلافت عباسیہ کی حکومت آئی تو اس زمانے میں بھی زرتشتیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا مسیحا بہرام اب بھی زندہ ہے اور وہ واپس آ کر مسلمانوں کو شکست دے گا اور زرتشتیوں کی حکومت اس دنیا پر دوبارہ قائم ہوگی۔ 1 صدی عیسوی میں دوسیتھیس سامری نامی شخص نے یہودیوں کے مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کا یہودی پچھلے 1000 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ بعد میں دوسیتھیس اور اس کے ماننے والوں نے سامری فرقہ کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح شمون بن کوکبہ نے 135 عیسوی میں، سبتائی زیوی نے 16ویں صدی میں اور مناشم ربی نے 19ویں صدی میں یہودیوں کے مسیحا ہونے کا جھوٹا اعلان کیا۔ ان لوگوں نے اپنے پیروکاروں کی اچھی خاصی تعداد بھی بنائی جو آج تک موجود ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا مسیحا اب بھی زندہ ہے جو خفیہ مقام سے ان کے لیے تدبیریں کرتا اور مدد بھیجتا ہے۔ عیسائیت میں جھوٹے مسیحا کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جیسا کہ انجیل کے کتاب متی میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے مسیحا آئیں گے جو انسانیت کو گمراہ کریں گے۔ ان جھوٹے مسیحا میں چند مشہور نام جان نیکولاس، فادر ڈائیوائن،
याहवे, वाइन बेंट, लुइस डी जीसस, अपोलो क्विनबोलॉय और डेविड कोरेश का है। इन फॉल्स प्रॉफिट्स का ताल्लुक ज़्यादातर अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज से है, जिन्होंने ये दावा किया कि खुदा उनसे बातें करता है और वो इंसानियत की तरफ भेजे गए मसीहा हैं। उनमें से कुछ ने ये दावा भी किया कि वो ईसा मसीह है जो दोबारा इस दुनिया में भेजे गए हैं। इन कज़्ज़ाब मसीहाओं ने लोगों के सामने शोबदाबाजियाँ और मैजिक ट्रिक्स दिखाकर उन्हें यकीन दिलाया कि उनके हाथों से मौजज़ात सादिर हुए हैं, जबकि ये मसीहा फ्रॉड, मर्डर और गैर कानूनी नशा आवर चीज़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुलव्वस पाए गए। इसके बावजूद अल्लाह ने जिनके दिलों को अंधा कर दिया वो आज भी इन फॉल्स प्रॉफिट के पैरोकार हैं और उन्हें अपना मसीहा तस्वुर करते हैं। तारीख में मसीहा होने का एक अजीबो-गरीब दावा नाजियों के यहाँ भी मिलता है। कहते हैं कि जर्मनी का डिक्टेटर और इंसानियत का कातिल एडोल्फ हिटलर साल 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के अंदर ईसाईयत की जगह एक नए मजहब को लागू करना चाहता था और हिटलर खुद को नाजियों और यूरोपीय ममालिक का मसीहा मानता था। विल्फ्रेड डायम ने लिखा है कि हिटलर अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाता तो वो ईसाईयत नहीं बल्कि एक एंटी क्रिश्चियन मजहब को यूरोप में लागू करता, जिसमें वो खुद मसीहा होता और नाजियों और आर्यन नस्ल को दुनिया की हुकूमत सौंपता। ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था जिसके जरिए यूरोप में शैतान के पुजारी नाइट टेम्पलर्स का दोबारा ज़हूर होता। लेकिन वो इसमें नाकाम रहा और इस नाकामी की वजह से ही हिटलर ने खुदकशी कर ली। अगर इस्लाम की बात करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और ये अकीदा रखना कि हुजूर के बाद क़यामत तक ना कोई नबी आएगा ना किसी पर वही आएगी, ये इस्लाम की बुनियादी अकायद में एक है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही ये पेशनगोई कर दी थी कि आपके बाद बहुत सारे झूठे नबी और कज़्ज़ाब पैदा होंगे। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तकरीबन 30 झूठे दज्जाल ना निकलें। उनमें से हर एक का यही गुमान होगा कि वो अल्लाह का रसूल है, हालांकि मैं खातिमुल अंबिया हूँ। एक रिवायत में उन दज्जालों की तादाद 27 और एक में 70 बताया गया है। ये झूठे कज़्ज़ाब और नबूवत के दावेदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही पैदा हो गए थे। उनमें मुसैलमा कज़्ज़ाब सबसे पहला दज्जाल था जिसने हुजूर को ख़त लिखकर आपकी नबूवत में खुद को शरीक करने को कहा। हज़रत अबू बकर के खिलाफत में ये बहुत ताकतवर हो गया था और उसने 40,000 का लश्कर यमामा में इकट्ठा कर लिया, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में इस फितने को बहुत जल्द ख़त्म कर दिया गया। दूसरा कज़्ज़ाब भी हुजूर की हयात मुबारका में ही यमन से निकला, जिसका नाम असवद अंसी था। ये शख्स जादू और कहानत में माहिर था, लिहाजा लोग उसके धोखे में आकर उसके पैरोकार बन गए। असवद अंसी ने यमन पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, लेकिन यमन के ही कुछ मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर के खिलाफत के ज़माने में उसे कत्ल कर दिया। इसी तरह अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हारिस दमिश्की ने नबी होने का दावा किया, जिसे खलीफा ने कत्ल करवाया। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुगीरा बिन सईद ने अपने ऊपर वही आने का झूठा दावा किया, जिसका ताल्लुक राफ़ज़ी फ़िरके से था और वो मुर्दों को ज़िंदा करने का भी दावेदार था। लिहाजा खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक ने उसे और उसके मुरीदों को पकड़कर साल 119 हिजरी में ज़िंदा जला दिया। इसी तरह 127 हिजरी में सालेह बिन तरीफ ने खुद को इमाम महदी करार दिया। 135 हिजरी में इसहाक अखरस ने नबी होने का दावा किया और बहुत बड़ी फ़ौज जमा की, लेकिन अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने उसे शिकस्त देकर कत्ल कर दिया। खिलाफत उस्मानिया में बहाउल्लाह ने बगदाद में नबी होने का दावा किया था और बहाई फ़िरके की बुनियाद रखी थी। उस्मानी खलीफा ने उसे अक्का में 24 साल कैद रखा, जहां उसकी मौत हो गई। पिछले सदी का सबसे बड़ा कज़्ज़ाब और दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी था।
जिसने सन 1900 ईस्वी में अंग्रेज़ों की साजिश और मंसूबे से पंजाब के इलाके कादियान में ये ऐलान किया कि न सिर्फ वो नबी है बल्कि महदी और मसीह मऊद भी है। बहुत ही कम अरसे में उसके पैरोकारों की तादाद बढ़ गई और उसने अहमदिया फ़िरके की बुनियाद रखी, जिसे कादियानियत भी कहते हैं। ये उस ज़माने का सबसे बड़ा फितना था, क्योंकि बेशुमार मुसलमान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों और उसके रिसालों से मुतासिर होकर मुर्तद हो गए। साल 1908 में हैज़े के मर्ज में मुब्तला होकर इस मलून की मौत हो गई, लेकिन अहमदिया फ़िरका आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म है और इसके मानने वालों ने आज भी अपने इस दज्जाली फितने को जारी रखा है। तारीख़ इस्लाम में इस तरह के और भी कई कज़्ज़ाब और झूठे नबी पैदा हुए। उनमें बाज़ बहुत मशहूर हुए और बाज़ गुमनाम हो गए, और आज भी इस तरह के कज़्ज़ाब और नबूवत के झूठे दावेदारों का फितना सामने आता रहता है। लेकिन इन तमाम कज़्ज़ाब और दज्जाल को इस्लाम में दज्जाल असग़र कहा जाता है, जबकि क़र्ब क़यामत में जिस दज्जाल का ज़हूर होगा वो इन तमाम कज़्ज़ाबों से भी बड़ा कज़्ज़ाब और फ़रेबी होगा, जिसे दज्जाल अकबर या मसीहुद दज्जाल कहा जाता है। मसीहुद दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। दज्जाल खुद को मसीहा और इंसानियत का निजात दहिंदा जाहिर करेगा, लेकिन दरअसल वो एक झूठा शख्स होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में अपनी उम्मत को ख़बरदार किया कि तुम में से कोई भी शख्स दज्जाल के सामने ना जाए, क्योंकि तुम अगर दज्जाल को कत्ल करने के लिए भी जाओगे, लेकिन जब वहाँ से लौटोगे तो दज्जाल को अपना खुदा बना चुके होगे। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि दज्जाल से बचकर जितनी दूर भाग सकते हो भागो, और असहाब कहफ की तरह अपना ईमान और जान बचाने के लिए कहीं किसी गार में पनाह ले लो, जब तक इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होता। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने की कुदरत सिवाय ईसा इब्न मरियम के किसी और को नहीं दी गई है, और सच्चे मसीहा के हाथों झूठे मसीहा का कत्ल होगा। बिलाशुबा दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक तमाम अंबिया अकराम ने अपनी अपनी कौम को ख़बरदार किया था। यही वजह है कि आज हर मज़हब और आसमानी किताबों में क़यामत से कबल एक बहरूपिये और कज़्ज़ाब का ज़िक्र मिलता है, जिसका ज़हूर बुराई और शैतानियत की इंतहा और जिसका ख़ात्मा हक़ और सच्चे दीन की फ़तह साबित होगी।